بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی مدر اللجائب تجد وانا لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب اور کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے جس مقصد کے لیے ہمیں اکٹھے کیے گئے مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین اس وقت کا صدقہ قبولیت کا وقت ہے ملتا وقت ہے روئے زمین پر موالیان حیدر قرار کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خصوصاً وہ گناہ جو معرفت حق میں رکاوٹ ہیں وہ معاف فرما ہم سب صبح دوپہر شام رات ہر لمحہ ہر دور میں زمانے کے امام کی جوتی کا صدقہ لنگر کھاتے ہیں ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین الہ العالمین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حقیقت سمجھنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین کربلا کی زیارت ہر موالی حیدر قرار کو نصیب فرما مگر ہاتھ لگانے والی نہیں کفن لانے والی نہیں معرفت والی زیارت نصیب فرما وہی زیارت نصیب فرما جس کے بارے میں ایک عارف نے نظم لکھی تھی کہ حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا سے ایسی معرفت نصیب فرما خالق کونین سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کی راہ میں آنکھیں بچھانے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی بجائے ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے گلے کرنے کی بجائے اپنے نفس کو شکست دینے کی توفیق عطا فرما ہمارے جسموں پہ ضمیر کی حکومت قائم فرما خالق کونین جہاں جہاں موالیان حیدر قرار دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو سب قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو احسان فرما کریمی فرما کسی بھی ریت امام کو سوائے حجت کے کسی کا محتاج نہ کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر بڑے اعلیٰ محبت والے لوگ واقعی مرید صاحب واقعی الماس ہیں پہلی ملاقات ہوئی اس کے بعد ایک میں نے ان کو جملہ کہا انہوں نے اس جملے پہ حامی بھی بھری حوصلہ افزائی بھی کی اچھے لوگ ہر دور میں وہی ہوتے ہیں کہ حق کا پتہ چلے تو قبول کر لیں اگر ایسی کیفیت نہ ہوتی تو یہ نہ فرمایا جاتا من المہد الی اللحد اس کا مطلب ہر دور میں ضرورت رہتی ہے ہمارے جسم کو ضرورت ہے ابھی علماء صاحب نے سرکار کا صدقہ ہمیں کھلایا لنگر ہم نے کھایا کیا صبح نہیں کھائیں گے صبح پھر ضرورت ہے شام پھر ضرورت ہے آپ ہیں ابھی سرکار کا صدقہ تناول کریں گے یاد رکھنا اپنا حق سمجھ کے لنگر نہ کھایا کرو کسی کا صدقہ سمجھ کے کھایا کرو شاباش میں اس پہ بھی ایک چھوٹی سی بات علماء صاحب عرض کر جاؤں گا روٹی کھاؤ سالن کھاؤ سبزی کھاؤ پھل کھاؤ پانی پیو کسی کا صدقہ سمجھ کے استعمال کیا کرو اپنا حق سمجھ کے استعمال کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے کسی کا صدقہ سمجھ کے استعمال کرو گے تو فائدے میں رہو اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں وہی
जो अपनी जिंदगी भी इसी तरह गुजारेंगे, हम भी किसी का सदका जिंदा है। क्या बात है। मैं समझ रहा था थके हुए होंगे, वक्त काफी हो गया, लेकिन मारिफत के मोती समेटने बैठे तो इंशाअल्लाह आपकी झोलियों में जरूर सरकार कायम का सदका मारिफत की खैरात जरूर आएगी। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, तबीयत घबरा तो नहीं गई? माशाल्लाह माशाल्लाह। हक हक तलब जिस्म की जरूरत है, खाना पानी हवा, ऐसे है या नहीं? दाएं बाएं नहीं देखना, बहुत थोड़ा मैंने खिताब करना है। अभी आप लंगर करेंगे सरकार का सदका, सुबह आपकी फिर जरूरत है, शाम को फिर गिलानी सब जरूरत है। ये जिस्म की जरूरत है जो साथ साथ चलती रहती है, खत्म नहीं होती। जिस तरह जिस्म की जरूरत है इसी तरह रूह की भी जरूरत है। और याद रखिएगा, इंसान 3 चीजों का मुरक्कब है। नंबर 1 जिस्म, नंबर 2 नफ्स, नंबर 3 रूह। असाजा बैठे हैं, इल्म दोस्त आप तशरीफ फरमा हैं। जिस्म, नफ्स, रूह। जिस्म की भी जरूरत, नफ्स की भी जरूरत, रूह की भी जरूरत। कुरान से पूछते हैं इन तीनों में जिंदा क्या रहता है? शाबाश। जिस्म जिंदा रहता है, नफ्स जिंदा रहता है या रूह जिंदा रहती है? जिस्म कहते हैं नहीं, एक कुरान कहते हैं नहीं, नफ्स मर जाता है, जिस्म कब्र में चला जाता है, जो जिंदा रहती है वो रूह है। कुरान ये बता कि रूह का भी कोई मजहब होता है? कुरान कहते हैं नहीं, रूह का कोई मजहब नहीं होता। तो मजहब की बात करते हैं, रूह का मुज़क्कर मुअन्नस भी नहीं होता। बस 2 ही रूह के हकीकी मनाजिल होते हैं, या रूह जिंदगी गुजरवा कर जिस्म के साथ अच्छा सा वक्त गुजार कर या मकाम इल्लियीन पे जाती है या मकाम सिज्जीन पे जाती है। पूछा गया मासूम से, मौला ये मकाम इल्लियीन और सिज्जीन, फरमाया एक हक की तरफ जाती है, एक बातिल की तरफ लौट जाती है। ये याद रखना, 2 बड़े कीमती जुमले हैं। कभी मौका मिला गिलानी साहब मकाम सिज्जीन पे बात करूंगा, मकाम इल्लियीन पे बात करूंगा। यहाँ एक बात जरूरी है, वो आज करता जाऊं, क्या सारी रूहों के फैसले अज़ल से हो चुके थे? ये इल्लियीन में जाएंगी, ये सिज्जीन में जाएंगी? नहीं, अज़ल के फैसले होते कमरा इम्तहान से ना गुजारा जाता। ओहो हो नहीं अर्ज कर पाया। और आसान आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये जैसे असाज़ा तशरीफ फरमा है, ये इम्तहान लिया जाता है किससे? उन बच्चों से जिन्हें प्रमोट करना होता है। भाई प्रमोट करना है, बच्चे को इम्तहान दिलवाएंगे, अगर पास हो गया तो प्रमोट हो जाएगा, फेल हो गया तो फिर दोबारा मेहनत करके दोबारा इम्तहान दे। इसका मतलब इम्तहान होता है प्रमोशन के लिए। अगले इम्तहान तक के लिए अक्ल वाले लोग पिछली गलतियां नहीं दोहराते। असाज़ा तशरीफ फरमाए, मेरा बड़ा दिल था, दाएं बाएं यार ये थोड़ी देर तरफ मेहरबानी करो, कोई बात नहीं, लाइट जल जाए ठीक है, नहीं तो परवाह नहीं, मुझे मेरी तरफ रहना। साहिबाने अक्ल, साहिबाने शऊर, साहिबाने समझ, कोई बात नहीं, बच्चों को कुछ ना कहें। अगले इम्तहान जो पीछे कमियां रह गई होती हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगला इम्तहान हमारा बेहतर हो, अगला इम्तहान हमारा बेहतर हो, अगला इम्तहान हमारा बेहतर हो। एक दिन ऐसा आता है कामयाब हो जाते हैं। अच्छा ये कामयाबी क्या है ये भी बताता जाओ। खुदा की कसम, किसी ने डिग्री ली होगी फिजिक्स में मास्टर्स की, किसी ने डिग्री ली होगी इंग्लिश में मास्टर्स की, किसी ने डिग्री ली होगी मैथमेटिक्स में मास्टर्स की, या पीएचडी की होगी, डिग्री ली होगी। ये सब डिग्रियां आर्जी हैं। बंदा जिंदा है तो डिग्री जिंदा है, बंदा मर गया डिग्री मर गई। मैं तुझे बताऊं, आले मोहम्मद के आशिकों ने हमें करके दिखाया। अगर हम भी जिस दौर में भेजे जाएं उस दौर में इम्तहान क्लियर करके टॉप कर जाएं, फिर वो डिग्री देते हैं, कहते हैं अंता मिन्ना, अंता मिन्ना, अंता मिन्ना। मिन्ना की छोटी डिग्री नहीं, पूरी कायनात चाहती हम मोहम्मद में से हो, मोहम्मद चाहते सब नहीं, सलमान हम में से है। बहुत बड़ी डिग्री है मिन्ना अहलुल बैत। इस पे गुफ्तगू करूंगा, बात कहीं और निकल जाएगी।
बहुत ज़रूरी है। साजा बैठे, मेरा दिल है मैं इनके हवाले से आपकी खिदमत में कुछ पैगाम दे जाऊँ। बात फिर वापस ला रहा हूँ, मरता क्या है? नफ्स। जिस्म हो जाता है दफन, मरता है नफ्स। ये पूरा गिलानी साहब, अलमास साहब बिरादर मोहतरम बुजुर्ग तशरीफ फरमा, पूरी जिंदगी यही इम्तिहान चलता है, किसी तरह नफ्स मारते हैं। ये जो माशाल्लाह नमाज पढ़ते हो, अल्लाह को मेरी और आपकी नमाजों की जरूरत है? ऐसे ऐसे मुल्क हैं जहां बहुत कम लोग नमाज पढ़ते हैं, तो क्या अगर वहां नमाज कम पढ़ी जाती है तो क्या नौज बिल्ला अल्लाह की वहदानियत पे कोई फर्क आता है? नहीं। इसका मतलब इसका कोई फायदा था जिसके लिए ये पढ़ाई गई थी, बच्चे को नहीं पढ़ाई जाती। क्यों? ये उस मकाम पे फाइज है, इसे नमाज की जरूरत नहीं, ये हर वक्त नमाज में है। मैंने कहा इरफान के मोती हैं संभाल लो, मैं बिस्मिल्लाह करूं, बेलौस मोती हैं, इरफान के मोती हैं संभाल लो झोलियों में, हर वक्त नमाज में है। नहीं समझा पाया आप जो पहुंच गए, मैं सलाम पेश करता हूं। सादा कराम, हर वक्त नमाज में कैसे? आओ नमाज के फायदे तलाश करते हैं। पूछा गया तेरी सरकार से नमाज का फायदा, सरकार ने फरमाया नमाज दीन का सतून है। फिर फरमाया नमाज मोमिन की मिराज है। हमने समझा शायद इसी की वजह से दीन कायम है। अगर 7 अरब आबादी में से मुसलमानों को अलहदा निकाल लिए जाएं तो बहुत 1/3 से भी कम होते हैं। ऐसे है, अगर इन 1/3 से कम लोगों में क्या सारे नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये दीन इन्हीं की वजह से कायम है जो पढ़ते हैं? राज था, हर बात में राज था। थोड़ा सा एक दूसरे से लड़ना छोड़ दो, एक दूसरे की गीबत करना छोड़ दो, एक दूसरे के गिले करना छोड़ दो, एक दूसरे को माफ करना शुरू कर दो, अक्ल खुलता जाएगा। अक्ल खुलता जाएगा। कैसे अलमास साहब अक्ल कैसे खुलेगा? वरना रोटी खाते हुए मैं अपना हक समझ कर रोटी खाऊंगा। अगर अक्ल खुल गया फिर रोटी खाने से पहले सोचूंगा दाना कब जमीन में गया था, फिर पानी मिला था, फिर तना बना था, फिर इस पे फन लगा था, फिर गर्मी से इसे पकाया गया था, फिर इसे काटा गया था, फिर थ्रेशर में डाला गया था, फिर दाना भूसा अलहदा किया गया था, फिर चक्की में डाल के पीसा गया था, फिर घर आया था, मेरी मस्तूर ने आटा गूंदा था, फिर तवे पे डाला था। इसने गर्मी बर्दाश्त कर कुर्बानियां दे 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 के मुझ तक पहुंच के कहता है मुझे हलाल करना है तो तू भी कुर्बानी दे। क्या बात है? अल्लाह करे हम अक्ल का इस्तेमाल वहां करें जिसके लिए हमें अक्ल दिया गया था। हमने अक्ल का इस्तेमाल बहुत अजीब अजीब मामलात में शुरू कर दिया। भाई इसकी कोठी ऐसी क्यों, इसकी कार ऐसी क्यों, इसके पास पैसे कहां से आ गए? हमारी तो ये परेशानी नहीं है। मोमिन, मिंबर पे मैं से ऐलान करके जा रहा हूं, किसी की कोठी कार देख के परेशान ना हुआ कर। मोमिन का सर बड़ा होता है, मोमिन जलता नहीं। कोठी देख के कहा कर अल्लाह इसे और दे। भाई क्या बात है? जब तू फिक्र करना जरूरी। ये दरख्त है, ये दरख्त है मेरे सामने, जरा गौर फरमाया आपने? इसकी इतनी छांव नहीं। क्यों? छोटा है? नहीं। गहरा नहीं। गहरा ज्यादा तब होगा जब ये बड़ा से बड़ा हो जाएगा। फिर कह ये जैसे दरख्त है, छांव दे रहा है, गहरा है। कितना गहरा है? इतना गहरा है अपने आप को गहराई में ले जाकर छांव देकर कहता है मेरे नीचे आने के लिए गुनाहगार या नेक होना जरूरी नहीं। मेहरबानी है सादा कराम, बहुत शुक्रिया मैलसी। मेरे नीचे आने के लिए गुनाहगार या नेक होना शर्त नहीं। मैं इताअत पे हूँ, मैं अमर पे हूँ। कोई आए बिस्मिल्लाह। दरख्त तुझे क्या फायदा मिलता है? हम जैसों को छाऊं देते, तुझे क्या फायदा मिलता है? का क्या करूं? मैं फायदा नहीं देखता, मैं अमर देखता हूँ। और गिलानी साहब ये बहुत बड़ा नुक्ता था। अलमास साहब शुक्रिया, मेहरबानी, ये बहुत बड़ा नुक्ता था। अगर संभाल जाओगे तो कमाल हो जाएगा। दीन में कमाल तक पहुंचने के लिए नफा नुकसान नहीं देखना पड़ता, कर्म देखना पड़ता है। मुझे मिलेगा क्या? अभी खिताब में मैं गुजारिश कर रहा था, गिलानी साहब तशरीफ फरमाते हैं, अली पाक का फरमान है
जब पूछा गया मौला इबादत की तफसीर फरमाए, फरमाया 3 किस्म की इबादत लोग करते हैं। पहली इबादत खौफ से करते हैं, फरमाया ये गुलामों वाली इबादत है। सरकार फरमाया दूसरी इबादत की किसे में लोग तमे के लिए करते हैं, लालच के लिए, फरमाया ये ताजरों वाली इबादत है। ओहो। तीसरी इबादत वो है, फरमाया जो ना खौफ है ना लालच है, लायक इबादत समझ गए। भाई कमाल है अलमास साहब, क्या मजमा ज़हनी तौर पे आपने मयार समात क्या इनका कमाल है तैयार किया है। लो जी संभालो इरफान के मोती। दरख्त सारी धूप तो तू झीलता है, नीचे आने वाले को छांव देता है, ये और बात है हम कभी गौर नहीं करते। तुझे धूप नहीं लगती का लगती है, देखा नहीं मैं कहीं कहीं जल भी जाता हूँ, हमने नहीं देखा। तूने अल्लाह की बारगाह का कभी शिकवा किया हो, का शिकवा बनता नहीं, अल्लाह का तो शुक्र ही बनता है। क्या बात है। लो जी आम का मौसम आ गया, बात एक सामने आ गई, गिलानी साहब करता जो अल्लाह करे आमों तक ये याद रहे भूले ना। आम का मौसम आ गया माशाल्लाह, जगह जगह बागात मैंने देखे, मुल्तान का इलाका वैसे आमों से भरा है। आम बादशाह कहलाया जाता है फलों में, मीठा बड़ा होता है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि आम खाऊं, सिवाय शुगर वाले के। शुगर वाले को इलाज बताते जाओ, गिलानी साहब बेहतरीन इलाज है, ना गोली न टीका न कुछ। इस इलाज को करने के लिए सबसे पहले यकीन किस पे, उस पे जिसके सहारे कायनात कायम है, जिसे कायम कहते हैं। कायम ना हो बेबकाए बकियत दुनिया, कायम ना हो कोई चीज अपनी जगह मौजूद ही न रहे। 14 पत्ते नीम के, देखे नीम बड़ी कड़वी होती है, सुबह सुबह निहार मुंह यकीन के साथ 40 दिन खा। 14 पत्ते, ऐसे नहीं उठ के सुबह सुबह पत्ते खाने से पहले काबे की तरफ रुक करके इमाम को सलाम कर। बात सामने आ गई तो मैंने कहा है जी मैं सबक कायम तो नहीं है तवज्जो में रखिएगा। मैं तो मतलब 14 पत्ते सरकार को सलाम कर। अच्छा अगर ये इलाज ना भी करे कोशिश किया कर, इमाम को सलाम किया कर रोजाना सुबह सुबह उठ के, अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान, सलाम किया कर। फायदा है, जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब। ओ हो। अच्छा एक और बात भी आज करता जाओ, बात दूर तक जाएगी माशाल्लाह, मिक्स मजमा होना भी चाहिए। हमारा पैगाम सबके लिए है, हमारा ये मिंबर सबकी हिदायत के लिए बिछवाया गया है, यहाँ तफरीक नहीं है। मेरे छठे इमाम 4000 तालिब इल्मों को बगैर स्पीकर के दर्स दिया करते थे। हर मजहब के इमाम बैठे होते थे, हाँ जी हर मजहब के इमाम बैठे होते थे, मगर अल्लाह का बनाया हुआ इमाम ऐसा दर्स देता था। ओहो सुभान अल्लाह, ये सब के लिए पैगाम है और पहुंचना भी सब तक चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना मिंबर पे कभी बात की और जो करे मैं उसको टोकता हूँ। बंदे मिंबर पे सामने कहते हैं हलाली हरामी की पहचान नारा है, नहीं किसने कहा हलाली हरामी की पहचान? और तुम मिंबर पे ऐसा नारा ना लगा, वैसे का भी नारा हैदरी इसलिए मारो, ये हाथ ऊंचे करते हैं, या अली का बेटा सुन रहा है, जब आएगा हाथ हमारे ऊंचे देख के कहेगा तुम ही थे ना जो हाथ ऊंचे करते थे, आ जाओ। हलाली हरामी की पहचान अली महदी फैसला करेगा। ये फैसला इमाम पे छोड़, अभी ऐसे जुमले ना कहे, हो सकता है को आना चाहता हो तेरे इस जुमले की वजह से बाहर चला जाए। सैयद है बाबा, मजबूरी है खून की, पैगाम मोहब्बत देना है हमने, हमारे पास सख्ती नहीं है सैयद, पैगाम मोहब्बत आने दो लोगों को यार, ये बड़ी मुकद्दस जगह है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, रोटी खाने से पहले सोच, खुदा की कसम लुकमा लुकमा परख के खाएगा, लुकमा डालेगा शुक्र, लुकमा डालेगा शुक्र, लुकमा डालेगा शुक्र। क्यों? तुझे हकीकत का पता चल गया, दाना कितने मरहले तय करके मुझ तक पहुंचा। आपको ये भी बताऊं दाना पकता कैसे है, फल पकता कैसे है। तेरी सरकार से पूछा गया, सरकार इस फल के पकने का कमाल क्या है? फरमाया विलायत अली।
लो जी बात चल पड़ी थी आम की। मैं एक छोटा सा जुमला अर्ज करता जाऊं, बड़ा संभाल के रखना, कोशिश करना भुलाना ना जिंदगी में जवानों। जब भी याद आए आम मीठा तब होता है जब विलायत अली कबूल करता है, विलायत अली कबूल करके आम मीठा होता है। मैं मशवरा दे के जा रहा हूं लाहौर, बात संभालना, कोशिश करना, तवज्जो करो, कोशिश करना आम खाकर विलायत अली जिसने कबूल की थी। जब तक आम तेरे खून का हिस्सा रहे तू भी मीठा बनना, कड़वा ना बनना। क्या बात है भाई, क्या मयारे समात है मलसी। जिंदाबाद अलमा साहब, बिस्मिल्लाह। ऐसे मजमे हो बार बार दिल करते हैं जरूर आए सरकार की तौफीक से। तलबगार भी हो ना, तवज्जो है जी। बच्चे पे नमाज क्यों वाजिब नहीं, कभी सोचा है क्यों? बड़े बड़े उलमा के साथ में बैठा हूं, अक्सर उलमा फरमाते हैं कि जी बच्चा चूंकि बालिग नहीं इसलिए नमाज वाजिब नहीं। लो जी, एक दिन मैंने उलमा की खिदमत में, असाज़ा कराम, दूसरे बुजुर्गान, उनकी खिदमत में एक गुजारिश की। मैंने एक बंदा जवान है जिसको ना खाने की परवाह ना पीने की परवाह, जिनको लोग पागल कहते हैं, जिसने गल को पा लिया है। खुदा की कसम गिलानी साहब, जिनको दुनिया पागल कहती है उन्हीं को कहते दुआ तो मांग है। क्यों? कबूलियत की मोहर उसी के पास है, उसी के जरिए अल्लाह कबूल कर देता है। उसी को कहते दुआ तो मांग। वो हाथ उठा लेते, कबूल भी हो जाती है। छोटे बच्चों को भी मैं हाथ उठवा के दुआ करवाती है, कबूल हो जाती है। क्यों? राज है ना, हम भी तो बचपन गुजार के आए हैं। आज हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होते? बहुत सारी चीजें मैंने मिला दी हैं। मार्फत का मोती अब संभालना, बहुत बड़ा इरफान का मोती सरकार की तौफीक से मैं आपकी जोड़ियों में डालने लगा हूं। मैंने असाज़ा कराम से कहा जी उसके लिए क्या हुक्म है? कहने लगे जी वो पागल है वो ज़हनी मरीज है, उसके लिए नमाज जरूरी नहीं। मैंने कहा जी वो खाता भी है, जबरदस्ती को खिलाए तो पानी भी पीता है, प्यास लग जाए मूड हो तो एक ही कपड़ों में फिरता रहता है, नमाज तो वाजिब होनी चाहिए थी, बालिग भी है। वैसे मेलसी में ज्यादा रिवाज है मेंबर पे पैसे रखने का, है रिवाज है? अच्छा, रिस्पेक्ट। मेरी निगाह में रिस्पेक्ट ये है जो आए उसकी बात समझो। यकीन जानो, सफर करके आता है कोई इतनी दूर से, उसकी बात समझो, कहने क्या आया है। ये जो सलमान का कसीदा भी पढ़ जाए वो भी समझो, वो भी तुम्हें बताने आया हुआ होता है। लाशऊर में उसके शामिल है, शऊर में उसको याद नहीं है। सलमान का कसीदा इसलिए सुना रहा हूँ, सलमान आया था वफा की थी अलैहि सलाम बना था, तुझे इसलिए सुना रहा हूँ तू भी महदी का सलमान बन। हो गौर फिक्र करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जनाब अली, बहुत शुक्रिया हजूर वाला। बच्चे पे नमाज क्यों वाजिब नहीं? मैंने कहा नमाज के फायदे, नमाज दीन का सतून, नमाज मोमिन की मेराज। सुबहान अल्लाह, कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। अहले सुन्नत उलमा के सामने मैंने गुजारिश की, नमाज का बड़े से बड़ा फायदा सुना है। सलाम उन सब ने मिलकर कहा सैयद नमाज का सबसे बड़ा फायदा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहिशाइ वल मुनकर, नमाज बुराई से बचाती है, बेहयाई से बचाती है। इसका मतलब जो नमाज पढ़ के बुराई से बच गया, बेहयाई से बच गया, तब नमाज मोमिन की मेराज भी है, नमाज दीन का सतून भी। लो जी, मैं मेलसी की सरजमीन पे फैसला करके जा रहा हूं, याद रखना बच्चे पे इसलिए अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की तरफ से नमाज वाजिब नहीं की। ना बच्चा बुरा है ना बच्चा बेहया है। अब इसको भेज दे माँ बहनों बेटियों के पास, ऐसे जाएगा जैसे हर माँ इसकी अपनी माँ है। ओहो, शाबाश, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया। हर माँ इसकी अपनी माँ है। अल्लाह मेहरबानी जनाब अली, बहुत शुक्रिया हजूर वाला। हर माँ इसकी अपनी माँ, किसी को भी देखेगा माँ समझ के। हो गौर व फिक्र की जरूरत है ना।
اس لیے اللہ نے عقل دیا غور و فکر کے لیے. اس لیے تو میں پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کر گیا, کسی کے مال کو دیکھ کے پریشان نہ ہوا کرو. اگر اس نے حرام سے کمایا, آڈٹ کرنے والا آ رہا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. اگر حلال سے کمایا تو دعا دو اللہ اور دے. مومن نہیں جلتا. مومن کا ظرف میں پہلے کہہ گیا, مومن کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے. ہمیں حق حاصل نہیں کسی پہ انگلی اٹھائیں. واہ 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 واہ. آپ کی سرکار نے, الماس صاحب, آپ کی سرکار نے کسی کے غلط وضو کو دیکھ کر یہ نہیں فرمایا تیرا وضو غلط ہے. انہوں نے خود وضو کرنا شروع کر دیا, دیکھنے والے کو پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی جناب, شکریہ حضور والا. واہ واہ. نہ بچہ برا ہے نہ بچہ بے حیا ہے, اور اس کا یہ سب سے بڑا کمال ہے. غور کرنا, معرفت کا موتی تمہیں دے کے جا رہا ہوں. بچہ بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتا ہے, بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے ہیں. نہ بچے کو کوئی ہنساتا ہے نہ بچے کو کوئی رلاتا ہے. اکثر موقعوں پہ بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دے گا. یہی سوال تیرے معصوم سے ہوا تھا. مولا چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے, بیٹھے بیٹھے روتا ہے. یہ نہیں کسی نے پوچھا شیعہ کا بچہ. ہو شاباش. آج یہ بھی بتا جاؤں گا شیعہ کی حقیقت کیا ہے. ہو سکتا ہے یا محل سے داخلہ بند ہو گیا یا آتا جاتا رہوں گا سرکار کی توفیق سے. ضروری ہے نا ذرا ضمیر جھنجھوڑنا, ہم کھڑے کہاں ہیں, ہمیں کھڑا کہاں ہونا ہے. خدا کی قسم الماس صاحب, اس وقت کی قسم, ہم بہت کمزور ہیں. ہمیں علی کو منوانے کے لیے منبر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے, ورنہ 1400 سال بعد ہمارا معیار اتنا بلند ہوتا, غیر دیکھ کے کہتا یہ علی کا نوکر ہے تو علی کیسا ہوگا. کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تیسرا رب الاول میں ہم سب غلام ہیں, غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں. یقین جانیے ہے نہیں, اللہ کرے بن جائے, ہے نہیں. غلامی کا ایک واقعہ نہ سناتا جاؤں. بسم اللہ ہے شجی. یہ محمود و ایاز, یہ ماشاءاللہ اساتذہ کرام ہیں, خوب جانتے ہیں, پڑھاتے رہتے ہیں نا بچوں کو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی شاباش, کیا بات ہے. یہ واقعہ سنانے سے پہلے میں وہ بچے کی رونا یا ہنسنا بتاتا جاؤں, رہ نہ جائے. معصوم سے پوچھا گیا, مولا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے, بیٹھے بیٹھے روتا ہے, راز کیا ہے. فرمایا چونکہ بچہ ہے معصوم, اس کا زمانے کے معصوم سے پردہ نہیں ہوتا. ہو شاباش شاباش. میری پوری تقریر ایک طرف یہ جملہ نہ بولانا, بچہ ہے معصوم, اس کا زمانے کا امام سے پردہ نہیں ہوتا. زمانے کا امام کو مسکراتا دیکھتا ہے, نگاہ جو ہی پڑتی ہے ہنسنا شروع کر دیتا. اب بندے دنیا میں کہتے پھر رہے امام سے ملاقات نہیں ہوتی, امام سے ملاقات نہیں ہوتی, امام سے ملاقات. جھٹلا کتابوں کو, ملاقات ہوتی ہے پر معصوم کے لیے ضروری ہے دیکھنے والا بھی کم از کم اپنے آپ کو پاک کر لے, کم از کم اپنا معیار بلند کرے. لو جی, میں بات کہاں سے کہاں چل پڑی اور سرکار کی توفیق سے آپ کی خدمت میں کہاں لے آیا. محمود و ایاز, محمود بادشاہ, ایاز غلام. جانتے ہیں اساتذہ کرام, ایاز سید زادہ تھا. نہیں پتا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, لاہور میں اس کی قبر بھی ہے, رنگ محل میں. ایاز سید زادہ تھا. میں نے جب اس کی حقیقت پڑھی, سلام ہے اس پر, اس نے لوگوں کو غلامی کا طریقہ, رسول کا غلام بننے کا طریقہ سکھانے کے لیے اپنے آپ کو غلام بنا دیا. لو جی, غلاموں کی منڈی میں بکنے کے لیے پہنچ گیا. محمود بھی غلام خریدنے نکل پڑا. ایک ایک سے پوچھتے تیرا نام, اس نے کہا میرا نام فلانا. اس سے پوچھتے تیرا نام, اس نے کہا میرا نام فلانا. اس نے کہا تیرا نام میرا نام فلانا. جب ایاز کے پاس گیا, تیرا نام, سلام ہے اس کی کمال معرفت پر, کہتے جو خریدے گا وہی رکھے گا. ہوئے 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 ہوئے. بہت شکریہ, مہربانی. جو خریدے گا وہی رکھے گا. کوئی ایسا پسند آیا محمود کو کہ میں تجھے خریدوں گا, خرید لیا, لے آیا. وزیر مشیر تو محمود بادشاہ کے تھے ہی تھے,
कोई बात पूछनी होती, कोई मशवरा लेना होता, अयाज से पूछता, वाह अयाज तू बता ये फैसला क्या करूं। वाह वाह ये भी बार बार यही कहता, मालिक के आगे बोला नहीं जाता, अगर मालिक मेरा मुझसे पूछ रहा है तो मैं बताता हूँ। वाह वाह ओहो हो। क्या कह रहे भाई क्या बात है भाई, वसूल करने वाले हो बाबा, क्या बात है। लो जी, जहरी बात है, अगर बादशाह वक्त के कोई ज्यादा करीब हो तो साइडों वाले जलते हैं। ऐसे है ना, खुदा की कसम, इंसान जलने के लिए दुनिया में भेजा ही नहीं गया, वाह वाह ये रूह को कमाल पे लाने के लिए भेजा गया है। वाह वाह ये एक छोटा सा कमरा इम्तहान होता है, आनी है नफ्स को मौत, ये नमाज भी उसी की कड़ी है। जब बुराई से बच गया नमाज पढ़ के, समझ ले नफ्स कत्ल होना शुरू हो गया। वाह 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 नहीं अर्ज कर पाया। क्या कह रहे ये कुरान से पूछते हैं, कुरान मरता क्या है? कुरान कहता है नफ्स मरता है। ऐसे है ना, मरता नफ्स है, रूह है, जिस्म है बाबा, बोलो तो सही। नफ्स मरता है, अल्लाह मारता है अगर बंदा खुद ना मारे तो। नहीं 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 नहीं, असाजा कराम मजमे ने गौर नहीं फरमाया, अगर बंदा खुद नफ्स ना मारे फिर अल्लाह मारता है। अगर बंदा खुद नफ्स मार ले तो फिर कहते हैं गोर पियाई कोई हो। आप पहुंचे हो, सलाम है। क्या बात है जनाब। हाँ, मैं बिस्मिल्लाह। लो जी, जलना शुरू, हर वक्त अयाज 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 जबान पे नाम है। भाई गुलामों का नाम अच्छे हों तो मालिकों की जबान पे होता है। क्या बात है, सुभान असाजा कराम, आज मैं आपकी खिदमत में, जानते तो आप हैं, आपकी खिदमत में मैं एक जुमला देने लगा हूं। नौकर में और गुलाम में बड़ा फर्क है। नौकर और होता है, गुलाम और होता है। नौकर काम करता है, उसको कुछ मिलता है। गुलाम काम इसलिए करता है कि मालिक ने मुझे खरीदा है। और अली ने इसलिए फरमाया था उम्मत हमारी गुलाम है, उम्मत के मालिक हैं, क्योंकि मोहम्मद ने जो मौला बनाया था। क्या कह रहे गिलानी साहब, कभी मैं कोई जिलहज के मौके पे आए ना, मैं आपको मौला की तारीफ सुनाऊं। मौला किसे कहते हैं? ये ज़बानी कलाम ही नहीं है, मन को तो मौला फ़ाज़ा अलियन मौला। ज़बान, इसके पीछे हकीकत बहुत बड़ी छुपी है। लो जी, बादशाह भी समझदार था महमूद। गिलानी साहब जब जलते थे जवाब नहीं देता था, यही सोचा था कोई मुनासिब मौका मिलेगा तो मैं इन्हें बताऊंगा मेरे गुलाम का मकाम क्या है। खुदा ने एक मौका अता कर दिया। कैसे? हमसाए मुल्क के बादशाह ने बड़ी बड़ी पेटियां भेजी। खरबूजे जैसा फल होता है जिसको पंजाबी में तुम्बा कहते हैं, सराइकी में बुड़म्बा कहते हैं। पीला, कड़वा, रेत पे होता है, कोड़ तुम्बा। ऐसे है ना, वो इलाज रह गया शुगर का, वो भी बता कहेंगे सैयद आधी बात करके चला गया, वो भी बताता हूँ। लो जी, पेटियों में भेजा। शाह जी, बादशाह ने उठाया, एक वजीर को दिया, एक मशीर को दिया, एक वजीर को, एक मशीर को, सारों को बांट दिया। कहा खाओ। सब ने एक बाइट लिया, तो करके फेंक दिया। बादशाह ने कहा क्यों? अब बादशाह कड़वा है। अच्छा, अयाज, मेरे मालिक का बख्त बुला, मेरे मालिक का इकबाल बुला। सारे तनख्वाहदार थे, अयाज गुलाम था। बहुत शुक्रिया। लो जी, अयाज करीब। अयाज, ये हमसाए मुल्क के बादशाह ने ये फल भेजा है, ये पेटी से उठा के कहते खा। अयाज ने खा गया। का कड़वा नहीं लगा? वो सारे दाएं में बैठे थे ना, वो बातें करके कहते पागल है। सारा खा गया। बादशाह ने पूछा कड़वा नहीं लगा? का बादशाह कड़वा तो था। तो अयाज ये शादी बहुत बड़ा जुमला देने लगा। अयाज अगर कड़वा था, इन्होंने तो एक एक बाइट लेके वापस कर दिया। कड़वा था तो खाया क्यों? कहते बादशाह जान की अमान पाऊं, तू है मेरा मालिक, मैं हूं तेरा गुलाम, हमेशा तेरे हाथ से मीठी चीज आती है, एक दिन कड़वी आ गई तो थू कर दूं। हमेशा तेरी हाथ से मीठी चीज आती है, एक दिन कड़वी आ गई तो थू।
वाह वाह سید یہ ہمارے خون پہ قرض ہے. वाह वाह ہم سادات شناختی کارڈ والے سید نہ بنے. वाह 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 क्या बात اوہ ہو सुभान अल्लाह सुभान ہاں میں شناختی کارڈ پہ لکھا ہے سید فلانا شاہ، سید فلانا شاہ، سید فلانا شاہ. لوگ آئیں جھکیں، گوڈا پکڑے، جھک کے ملیں سید. نہیں، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. वाह वाह ہم نے بتانا ہے ہمارے بڑے کس معیار پہ فائز تھے. वाह वाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह اچھا یہ دیکھا ہے تھریشر جب لگتی ہے گندم ملتی ہے اور پھر بھوسا بھی ملتا ہے. ہم سب کی ضرورت کیا ہے؟ गंदम گندم. بھوسا فری میں ملتا ہے. بس جس نے مولا کو پا لیا، بھوسا دنیا ہے، مولا دے دیتے ہیں. شاباش بھائی، वाह 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 زندہ باد بھائی. क्या बात है میں مہربانی، सुभान अल्लाह خدا قسم میں ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک شرط ضرور ہے، کم از کم 4 5 6 جگہ پروگرام ہو. اس بستی ہو، اس بستی ہو. میں کہتا ہوں سوال و جواب کی نشست تو مومن سوال کرے، تاکہ جو ذہن ہے وہ بند بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھلے، تاکہ مولا کے لیے سفر کرے. वाह 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 کیوں؟ اگر یہ ٹھیک ہو گئے ان کا مقام بلند ہوگا. امام جس دور میں آئیں گے اس دور کو رجت کہتے ہیں. آدم علیہ السلام بھی آئیں گے، نوح علیہ السلام بھی آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی آئیں گے، سارے نبی آئیں گے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئیں گے، آقا مرتضیٰ پاک بھی آئیں گے، آقا مجتبیٰ بادشاہ بھی آئیں گے، سرکار کریم کربلا بھی آئیں گے. سب آئیں گے، سب اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرائیں گے. سب سے پہلے جناب آدم کہیں گے، قائم آل محمد، اللہ کی عدالت الہیہ کا جج، اب میں تجھے اپنے دور کے سچے دکھاؤں. میرے سچے وہ نہیں جنہوں نے میری بات سنی، میرے سچے وہ ہیں جنہوں نے سنی بھی یہاں، بٹھائی بھی یہاں. پھر نوح کہے گا میرے سچے وہ ہیں جو میرے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے. پھر ابراہیم بتائے گا، پھر عیسیٰ موسیٰ یحییٰ زکریا سب بتائیں گے. پھر تیری سرکار بتائیں گے، پھر امیر المومنین بتائیں گے، پھر سرکار کربلا دکھائیں گے. میرے سچے 72 کون ہیں؟ باری آئے گی تیرے زمانے کے امام کی، جنہیں امام زمانہ کہتا ہے. سرکار فرمائیں گے، انبیاء میری جد آپ سب نے اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرایا، اب میں اپنے سچوں کا تعارف کراتا ہوں. تعارف کرانے سے پہلے ایک جملہ سب سن لو، آپ کے سچے کمال مگر میرے سچے اور کمال. دنیا حیران ہوگی، فرق کیا ہے؟ سرکار فرمائیں گے آپ کے سچوں نے آپ کو مانا دیکھ کے، میرے سچوں نے غیبت میں مانا. یا امام الاجل الأجل الأجل يا إمام الأجل 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 يا إمام الأجل نعرہ حیدری. دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے. یہی غیبت میں ماننا ہے. امام سامنے ہوتے ہمارا رویہ یقیناً مختلف ہوتا. امام غیبت میں ہے، ہمیں رویہ اس سے بہتر بنانا ہے. کیسے؟ ہمیں مومنین سے اچھا سلوک رکھنا ہے، ہمیں روئے زمین پہ رہنے والے مخلوقات سے پیار سے رہنا ہے، ہمیں اگلی جنت کی تلاش نہیں کرنی، اسی دنیا کو جنت بنانا ہے. ہمیں ایک دوسرے سے ناراضگیاں، قدورتیں، جھگڑے، لڑائیاں ختم کرنی ہے. پہل ایک بندہ میرے پاس گیلانی صاحب آیا جہاں آپ تشریف لائے تھے، مجھے آگے کہتے ہیں شاہ جی 32 سال ہو گئے ٹینشن میں ہوں، بڑی ٹینشن ہے. ایک مسئلہ ختم ہوتا دوسرا شروع، دوسرا ختم ہوتا تیسرا شروع، تیسرا ختم ہوتا چوتھا شروع. کوئی اسم اعظم بتائیں دعا کریں. میں نے کہا دعا نہیں لگے گی جب تک وہ دعا نہیں کرے گا. کہنے لگے چلیں دعا دے دے، پھر دعا بھی کر دیجیے گا. میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں پڑی، دعا تو کر. کہنے لگے حکم کریں. میں نے کہا مانے گا؟ کہنے لگے مانوں گا. میں نے کہا نہیں نہیں، وعدہ کر مانے گا، تیرے معاملات ٹھیک ہونے کا میں عہد کرتا ہوں، پروردگار امام کے صدقے کرم کر دے گا. کہنے لگے جی بتائیں، حکم کریں. میں نے کہا اٹھ، دروازے کھٹکھٹا، جو جو تجھ سے ناراض ہیں یا جس جس سے تو ناراض ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے کہے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے. یقین کریں ممبر پہ کھڑا ہوں، 8ویں دن گیلانی صاحب آیا گھر، کہتا ہے خدا کی قسم رات ہی میں سکون سے سویا ہوں. میں نے کہا شاباش، تو نے زندگی میں منا لیا، ورنہ تیری میت پڑی ہوتی، تیرا وارث کھڑا ہو کے کہتا اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو. بندوں کو پتہ ہی نہیں دنیا میں بھیجے کیوں گئے. یہ وہ کام نہیں جو ہم کر رہے ہیں. عہد کرو، ہماری آنکھیں امام کی امانت ہے، ہم نے غلام بننا ہے. ایک چھوٹی سی بات غلام کی اور سناتا ہوں. آنکھیں امام کی امانت. خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو غازی کے علم کو دیکھے، بد نصیب
नसीब है वो आंखें जो गाजी का अलम भी देखें फिर हराम भी देखें। हाँ, खुश नसीब है वो हाथ जो कुरान को, खाक शिफा को, अलम अब्बास को, ज़रिए आले मोहम्मद को मस हो। बदनसीब है वो हाथ जो वहां मस हो के भी किसी मजलूम पे पड़े। हाँ, हमें खुद को खुद ठीक करना है। हाँ, आपकी क्या बात है, हमारे समाज की क्या बात है, हमें खुद ठीक करना है। सरकार बड़े करीम है, सरकार हमें बहुत बड़ा एजाज देना चाहते हैं। लो जी, एक बात और आ गई सामने, करता जो गिलानी साहब किताब लंबा तो माशाअल्लाह नहीं हो गया। यही गुलामी पे बात चल रही थी। गिलानी साहब एक जगह में गया, बिरादरान अहले सुन्नत तशरीफ फरमा थे काफी तादाद में। मैंने वहां एक बात की, मैंने कहा आप कहते हैं, हम कहते हैं, हम सब कहते हैं रूए जमीन पे कलमा गो, हम गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। आपको यह भी पता है सरकार का एक लक़ब है शफीअन मुज़निबीन, ऐसे है? कहने लगे जी बिल्कुल है। मैंने कहा एक बात बताओ, आपका अल्लाह ने जो आपको बेटा दिया, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता हो, माशाल्लाह आपका इलाके में नाम है, और जो आपके साथ तशरीफ फरमा उनका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता हो, आपका बच्चा आपकी मेहनत को समझ जाए, हर क्लास में मेहनत करे, मेरा बाप कमाता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, नौकरी करता है, कुछ करता है, धूप झीलता है, छाँव झीलता है, मेरे लिए कमा के लाता है, मैंने पढ़ना है, वो बच्चा समझ जाए, हर क्लास में टॉप करे। दूसरा बच्चा, देखना मेरी तरफ, कोई बात नहीं, लाइट की जरूरत। दूसरा बच्चा वो ये समझे कि कोई नहीं, बाप अगर मुझे पढ़ा रहे कौन सा मुझ पे एहसान करे, हर क्लास में फेल। मैंने कहा जनाब जिसका बेटा फर्स्ट आता है वो पूरे इलाके में सीना चौड़ा करके कहेगा देखो मेरा बेटा क्या बात है, देखो मेरा बेटा क्या बात है। और अगर तेरा बेटा फेल हो गया तो हेडमास्टर के पास जाएगा, मेहरबानी कर सर जी से माफ कर दे, इसको पास कर दे। वो कहेगा क्यों? तो कहेगा इसलिए मेरा इलाके में नाक कट जाएगी, नाम बड़ा है, कट जाएगा। वो क्या कहेंगे इतने बड़े बंदे का बेटा है, फेल हुआ। यही बात ज़हन में रखो, मेहरबानी करो, महशर के दिन मोहम्मद को सफारिश करने वाला ना बनाओ, फखर करने वाला क्या बात। सरकार ये ना कहते फिर परवरदिगारी ने माफ कर दे, परवरदिगारी मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफ नहीं। सरकार को ईसा मूसा याहिया ज़िक्रिया के सामने फख्र के साथ कहना चाहिए आपके भी कमाल है पर मेरे तो और ही कमाल है। वाह 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 वाह। फिर है गुलामी की सनत, फिर है गुलामी की सनत। लो जी मैं वो गुलामी की बात मुकम्मल करके दो जुमले मुझसे तबीयत घबरा तो नहीं। जिंदाबाद। समझो कीजिए जी, 14 पत्ते नीम के निहार मुंह सरकार जमाना को सलाम करें। सलाम करने के बाद सरकार से कहें कायनात का सुल्तान, मैं तेरी रियाया का अदना गुलाम, तेरी बारगाह तेरा सदका नीम के 14 पत्ते खा रहा हूँ। सरकार अगर पत्ते खा के तुझसे मदद मांगने के बाद भी मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मेरे मोमिन होने का क्या फायदा? क्या बात, सर जी 40 दिन आने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। सर जी बंदे 1 रुपए की डिस्प्रिन खाते हैं, यकीन के साथ ठीक हो जाते हैं। खुदा की कसम डॉक्टर 10,000 का हो, बंदा यकीन ना हो तो ठीक नहीं होता। 10 रुपए की पर्ची हो, यकीन हो, बंदा ठीक हो जाता है। मामला सारा यकीन का, जिसका यकीन मजबूत है उसी को तो साहिब ईमान कहते हैं। तो जी गुलाम की एक छोटी सी और बात, यही महमूद हो याद, पहला ये वाक्य मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। दूसरा, कुछ दिन तो आराम के गुजरे लेकिन फिर चहने गोयां शुरू हो गई। ये जी हर वक्त तैयार, हर वक्त तैयार, हर वक्त तैयार। बादशाह समझदार था, मुंह पे जवाब नहीं देता था। कहता था मौका बनेगा तो बताऊंगा गुलाम किसे कहते हैं। तो जी एक मौका ऐसा बन गया, अल्लाह की तरफ से साथ वाले मुल्क के बादशाह ने दावत दी महमूद को, हमारे मुल्क आओ। अब यहाँ इसने मौका बनाया, क्या इसने कहा जितने भी खजाने में सोना है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, सब गोरियों में डालो, ऊंटों पे रखो, हमने साथ वाले मुल्क जाना है। बंदे हैरान है, बादशाह जवाहरात सारा खजाना खाली करके जाना कहाँ चाहता है, उनको देना चाहता है। क्या करना, हुक्म था बादशाह का, मानना पड़ा। अपनी सारी काबीना लेकर
गुलाम को साथ लेकर ऐन सहरा के दरमियान पहुंचकर महमूद ने हुक्म दिया बोरियों के मुंह खोल दो, वाह 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 और साथ हुक्म दिया जितने मेरे साथ आए हो जितना ले सकते हो हीरे जवाहरात सोना ले जाओ। वाह वाह। किसी ने जेबें भरी, किसी ने अपने पटकों के अमामों के नीचे भरा, किसी ने खुरजीने थी वो भरी, जो जितना भर सकता था भरा। जब सब ने भर लिया खुशामद शुरू, बादशाह का बख्त बुलंद, बादशाह का इकबाल बुलंद, हमारी तो 7 नस्लें संवर गई। आज तो कमाल हीरे सोने इकट्ठे हो गए, कमाल जवाहरात इकट्ठे हो गए। बादशाह ने कहा कोई रह तो नहीं गया, चले? कहा सब ने ले लिया, अयाज ने नहीं लिया। अयाज मेरे मालिक का बख्त बुलंद, इकबाल बुलंद, अयाज वो अभी भी पड़े हैं जवाहरात, जाओ ले लो, सोना है, हीरा है, मोती है, चांदी है, जितना दिल करे भर लो। हाथ बांध के कहते मेरे मालिक का बख्त बुलंद। कमाल जुमला है, मैलसी संभालना, कोशिश करना, ज़ाय ना करना, दाद से ज्यादा समझना जरूरी है। मेरे मालिक का बख्त बुलंद, इकबाल बुलंद, सोना हीरा चांदी वो ले जिसका मालिक सोने जैसा ना हो। मेरा मालिक सोने से बुलंद है, ये है मयार गुलामी। ईमान से बताओ, जिनकी कनीज फिजा ओहो हो, इस मकाम पे फायज हो, फिजा का मौला क्या होगा। यही वक्त है हमें समझने और संभलने का, सुधरने का। आओ अहद करते हैं रात के इस टाइम, इंशाअल्लाह इस जिक्र का सदका अल्मा साहब हम सब दुआ करते हैं, दरखास्त करते हैं हमें गुलाम बनने की तौफीक अता हो। गुलाम वो होता है जो मालिक की हर रजा पे राजी होता है। गुलाम की अपनी मर्जी नहीं होती। गुलाम ये नहीं कहता ये कर ये ना कर, गुलाम कहते जो तेरी मर्जी वो तू कर। आय हाय, यही मयार था अली के गुलामों का, यही मयार था सरकार मुस्तफ़ा के गुलामों का, यही हसन पाक हुसैन बादशाह, सब आशिकों के, सब के आशिकों के, गुलामों के ये मयारात हमारी कुतुब में लिखे हैं। हमारे सामने उस्तादा साहिबान पर्चा आउट हो चुका है। मेहरबानी की लानी साहब, मेहरबानी की लानी साहब। नहीं देखो, लाइक के सलाम है, मार्फत का मोती देने लगा हूँ, थक गए, बशरी तकाज़ा है, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। जो पहुंच गया बिस्मिल्लाह, जो नहीं पहुंचा बाद में पहुंच जाना। गिलानी साहब कहते हैं बुखारी साहब आपकी तकरीर पे लोग ज्यादातर हैरानी से सुनते हैं, सोच रहे होते हैं, सही फरमा रहे हैं। मैंने कहा पर्चा आउट हो गया। लाइक के सलाम है सलमान, जिसको किसी ने करके नहीं दिखाया इश्क क्या होता है। बाद वाले हर आशिक ने सलमान से सीखा, मैसम से सीखा, बूजर से सीखा, कंबर से सीखा। हमारे सामने पर्चा उठ हो गया है, सारे आशिकों के किरदार हमारे सामने हैं। हम कितने खुश नसीब हैं, हमें अंदाजा ही नहीं। हमें पता है आशिकों ने किसी दौर में भी इश्क का सौदा नहीं किया। ओहो, गुलाम, एक बात और अर्ज करता जाऊं, गुलाम बंदू से जजा का तलबगार नहीं होता। नहीं, अपने मौला से, अपने आका से भी जजा का तलबगार नहीं होता। सिवाय शुक्राने की उसकी जबान कुछ नहीं बोलती। मुश्किल बात थी, शुक्रगुजार गुलाम कभी भी, जी जुमला मुश्किल है, सोचना जरूर मगर पॉजिटिव होके। गुलाम कभी भी करबला से कफन नहीं लाता। करबला जाके कफन लेना दूर की बात, उसको अपना होश भी नहीं रहता। ओए होए होए होए, नौकर है जो सिफारिश ढूंढते हैं। करबला का कफन नौजुबिल्लाह कोई गलत काम नहीं, अच्छी बात है, मगर मैं फर्क बताने लगा हूं, मार्फत की एक तुझे सैर कराने लगा। अगर बात समझ आ गई तो कमाल हो जाएगा। नौकर सिफारिश ढूंढता है, करबला का कफन मेरी बख्शिश की जमानत है। गुलाम कहते हैं इससे बड़ा क्या एहसान होगा जब उन्होंने खुद फरमा दिया जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के पर के बराबर हमारी मोहब्बत होगी वो जहन्नम नहीं जाएगा। बात मुश्किल थी, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा फर्क है।
बड़ा फर्क है। इंशाअल्लाह हमने भी गुलाम बन के दिखाना है। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। इमाम ज़माना हम सबको गुलाम बनाने के लिए दादे की मजलिस में बुलाता है। बस मैं समेट रहा हूँ गुफ्तगू, मैं नचोड़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। भाई शहरियार अलमास ने हमारी खिदमत की। अलमास साहब बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, अच्छी तरबियत है आपकी। इसको कहिएगा अटैच रहे ताकि कोई ना कोई इरफान के मोती इसको मिलते रहे। ये अलमास साहब से भी बड़ा अलमास बने। बाप खुश होते हैं अपनी औलाद को आगे चलता देखकर, आगे बढ़ता देखकर। हमें और हिम्मत करनी है। चलो बस इतना ही काफी है, मेहरबानी, इतना ही काफी है। बशरी तकाजे थक गए हैं, गिलानी साहब नाराज हुए बैठे हैं। कोई बात नहीं, मैं इन्हें मना लूंगा। तब जो बेहतर रखिएगा, तोहफा आपके लिए लाहौर वालों ने भेजा है, हर जगह देते फिर रहे हैं। लाहौर वालों की ड्यूटी है। दुआए अहद का बहुत खूबसूरत दुआ है, फरमाई तालीम की आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार ने तालीम फरमाई। सरकार ने फरमाया, तालीम फरमाते हुए, जो दुआ अहद रोज तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूं जहां दफन हुआ मेरा महदी उसकी कब्र पे आके उठाएगा। बिस्मिल्लाह। दुआएं सारी खूबसूरत है, हदीस किसा है, दुआ कुमैल है, मगर ये वो दुआ है जो बका की दुआ है। फरमाया जो दुआ अहद पढ़ता पढ़ता इंशाअल्लाह हम सबको चाहिए, जिन जो पढ़ रहे हो सलाम के लायक है, जो नहीं पढ़ रहे आपके लिए इमाम की तरफ से लाहौर वालों ने कोई ना कोई सबब तो बनता है ना। सरकार ने तोहफा भेजा, इसका कोई हदिया नहीं। उन्होंने कहा हमारी तरफ से बांटना। तर्जुमे के साथ दुआ अहद है, अरबी तो पढ़ोगे, कोशिश करना तर्जुमा जरूर पढ़ना ताकि तुम्हें पता चले इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। बड़ी बरकत है दुआ अहद की। इन 16 साल खिताबत में जहाँ जहाँ सरकार ने तौफीक बख्शी बांट बैठा हूँ, यकीन जानिए मोमनों की टेंशनें ख़त्म, मोमनों की परेशानियाँ ख़त्म, बरकत हो गई, मोमनों की तकलीफ़ें ख़त्म, हसद बद नजरी ख़त्म। जो मोमिन की रिस्क की कमी थी, रिस्क मौला ने बढ़ा। अलमा साहब कोशिश कीजिएगा किसी मासूम बच्ची के हाथ किसी समझदार बच्ची को भिजवाइएगा ताकि माँ बहनों बेटियों में भी ज़रूर तकसीम हो। वो ही याद कराएंगी हम लोग भुलक्कड़ हैं। हमारी बेटियां बच्चियां माएँ याद कराती हैं। जैसे माँ बहनों बेटियों को पता चल गया ना, सुबह सुबह उठ के सलाम करना इमाम को, ये पूरे घर को कहेंगी एक दूसरे को सलाम करने से पहले उसको सलाम करो जिसको सलाम करना शरीयत में सुन्नत है, जहां से जवाब सलाम मिलेगा। इनको पता चल गया ना कि हम सरकार का सदका खाते हैं, खुदा की कसम ये हर बच्चे को कहेंगी, घर वाले बड़े को कहेंगी, रोटी को हाथ ना लगाना, आओ पहले दुआ मांगते अल्लाहुम्मा कुल वली कल हुज्जत इब्न हसन। इनको समझ आ गई, कहेंगे आओ दुआ मांगते हैं सरकार के ज़हूर की। क्यों? जिसका खाओ शाबाश। इनको समझ आ गई। ये बच्चों को कहेंगी बेटा घर में होते हो तुम्हें हमारा डर होता है, माँ का डर, बाप का डर, इस डर से तुम गलत काम नहीं करते। याद रखना घर के बाहर जाते हो हम नहीं होते पर तुम्हारा इमाम हर जगह होता है। शाबाश शाबाश। ये खूबसूरत माशरा तश्कील पाएगा। बस इतनी आस करनी थी। करीम घराने का करीम शहजादा मखलूक में करम भी बांट रहा है, रो भी रहा है। करो सवाल सैयदादा, हमारी तरह रोता है? नहीं, मैं बिस्मिल्लाह करूं। हम पानी रोते हैं, वो खून रोता है। हाय हाय, यकीन जानिए मर्द के आंसू जिगर चीर के निकलते हैं। जिसका जिगर खून रो रहा हो उसके आंखों कोशिश किया करो यार। गिलानी साहब खुदा ना करे कहीं मर्ग हो जाए, अलमास साहब को बंदा अफसोस करने जाए ना, अफसोस करके एक जुमला जरूर कहते हैं, जनाब मेरे लायक कोई हुक्म हो मैं हाजिर हूं। कोशिश किया करो, रोते भी रहा करो, बिस्मिल्लाह, रोते भी रहा करो, ईमान को कहते भी रहा करो, मौला हमारे लायक कोई हुक्म हो हम हाजिर हैं। मौला तेरे उजड़े हुए घर का बड़ा अरमान है, मौला तेरी कायनात में बिखरी हुई मज़ारों का बड़ा अरमान है, मौला तेरी दादियों के बाजार दरबार जाने का बड़ा अरमान, मौला तेरी जद अमीर अल-मोमिनीन की शहादत का बड़ा अरमान है। 3 कातिल हैं अमीर अल-मोमिनीन के। अल्लाह अकबर। थोड़ी सी मैं तारीख भी एक जुमला जवानों के लिए अर्ज करना चाहूंगा। अमीर अल-मोमिनीन ने खत लिखा था वाली यमन को, 10 बंदे भेज, शुजा भी हूं, फसीह बलीग भी हूं, इबादत गुजार भी हूं। इसने 100 बंदे सेलेक्ट किए,
100 के बाद 90 निकाल के फिर 10 सेलेक्ट किए थे, 10 अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में भिजवा दिए। उनमें एक ही अब्दुर्रहमान भी था। जब आए ना अली के पास 10 बंदे, एक दिन सरकार पूछते हैं मन अंता, पता था या अली को तू कौन है? कहते आना अब्दुर्रहमान। सरकार कहते तेरे बाप का नाम? का इब्ने मुलजिम। सरकार फरमाते हैं तूने यहूदी दाया का दूध पिया है ना? सरकार मैंने सुना है कि मुझे बताया गया है जब मैं छोटा था एक यहूदी औरत मुझे दूध पिलाती थी। सरकार फरमाते एक जुमला भी कहती थी। जी सरकार वो भी सुना है, आप बताएं। सरकार फरमाते हो यहूदी औरत कहती थी साले की नाका को कत्ल करने वाले से बदतर। हाय हाय हाय, अंबिया के वारिस को तो कत्ल करेगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कबीला मुरादी बेशक सच फरमाए, कबीला मुरादी। सरकार ने सुना ना कलमा इस तरह बुलंद फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाथ बांध के कहते या अली मौला आका आपने जुमला इरशाद फरमाया। सरकार फरमाते हैं तू मेरा कातिल है। हैरान होके कहते हैं आका अगर मैं ही कातिल हूं तो मुझे मार दीजिए। वक्त गुजरता रहा, कुछ दिन और रहा, बीमार हो गया। क्या करीमी है या अली की, खुद अयादत फरमाते रहे। बंदों को कहा इसका खास ख्याल रखना। जब ये ठीक हो गया सरकार ने अमर फरमाया वापस यमन चले जाओ 10 बंदे। ये कहते हैं मौला मैंने नहीं जाना। इमाम फरमाते नहीं तूने जाना है। क्यों नहीं जाना चाहता? कहते सरकार आपके बगैर रह नहीं पाऊंगा। सरकार फरमाते हैं तू चला जा, मुझे बाकी जिंदगी के दिन गुजारने दे, तू चला जा। ये फिर हैरान होके कहते या अली कोई खास बात है? इमाम फरमाते हैं हाँ तूने मेरी बेटियों को कूफे में यतीम करना है। इसने फौरन गिलानी से तलवार निकाली, तलवार निकाल के इमाम के आगे रख के कहते आका मुझे मार दे अगर मैंने ये काम करना है। इमाम कहते हैं हम जुर्म से पहले सजा नहीं देते, तो अपना काम कर। आ गया वक्त, इसने ऐसी जर्ब मारी जमीन व आसमान हिल गए। अल्लाह अकबर। बेशक उस लईना के कहने पर उससे पीछे कोई और मास्टरमाइंड था। लानत हो इन मास्टरमाइंडों पर जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की शहादत के मूजब बने जो। अच्छा जी बस एक जुमला और मैंने कहना है, पकड़ के लाए इसको। सरकार के सामने खड़ा है। या अली पूछते हैं बता मैं तेरा करीम इमाम नहीं था, मैं तेरा शफीक इमाम नहीं था? इसने सूखे हलक की तरफ इशारा किया। इमाम ने बेटे को कहा इसको शरबत पिलाओ, शरबत। वाह या अली तेरे क्या कहने। शरबत पिलाया गया। ये बोलने के काबिल। इमाम फिर पूछते हैं बता मैं तेरा शफीक इमाम नहीं था, मैं तेरा करीम इमाम नहीं था? कहते आका आप शफीक भी हैं करीम भी हैं। रोके कहते अगर तुझे इतना पता है तो बता मेरी शहजादी के बहन क्यों बुलंद करवाए हैं? अल्लाह अकबर। आखिरी टाइम अमीरुल मोमिनीन का। अल्लाह अकबर। 20 रमजान का दिन गुजार के रात को सरकार कुफे वालों को कहते चले जाओ, जो वक्त बच गया वो मेरी बेटियों का बच गया, चले जाओ। जाते जाते कुफे वालों को या अली ने आवाज दी कुफे वालों मेरी बात याद रखना, मेरी जिंदगी में मेरी शहजादी आई थी कुफे, एक दफा फिर भी आएगी। कोशिश करना जिस तरह फूल बरसा के इस्तकबाल किया था ना औरतों ने, औरतों को कहना पत्थर न मारे। हाय हाय, नरम दिल था ना बाप का। आखिरी लम्हात रात के एक एक का हाथ अमीरुल मोमिनीन हसन के हाथ में रख रहे हैं। एक एक हसन इसका ख्याल करना, हसन इसका ख्याल करना, हसन इसका ख्याल करना, हसन इसका ख्याल करना। आखिर में बच गई शाम वाली, गाजी अब्बास और तेरा इमाम मजलूम। सरकार फरमाते गाजी हाथ आगे कर। गाजी ने हाथ आगे किया, शाम वाली का हाथ, तेरे मजलूम इमाम का हाथ, दोनों हाथ गाजी के हाथ पे रखवा के या अली कहते हैं गाजी ये दोनों तेरे जिम्मे हो गए। सज्जाद को बुलाओ, मेरा मासूम सज्जाद कहाँ है? सैयद सज्जाद छोटा सा सिन है, लेके आए।
سینے پہ یا علی کے لٹایا. یا علی سجاد کی آنکھوں کو بوسہ دینے لگے. کبھی دائیں آنکھ کبھی بائیں آنکھ, بوسہ بھی دے رہے رو بھی رہے. کسی نے پوچھ لیا یا علی آنکھوں کو کیوں بوسہ دے رہے ہیں؟ رو کے کہتے ہیں ان آنکھوں نے میری بیٹیوں کو بازار دیکھنا ہے, ان آنکھوں نے میری بیٹیوں کو دربار دیکھنا ہے. سیلم الذین ظلموا ایمن قلبون ینقلبون.